चलो, let's begin FIM, okay, fixed installation method. चलो, याद है फिक्स इंस्टॉलेशन ओरिजिनल कॉस्ट पे हर बार चार्ज करना है. Every year the amount of depreciation remains constant, that is same. Okay, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है. इसका स्ट्रेट लाइन मेथड बोलने का एक रीजन है. क्यों इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं पता है? Why it is called straight line method? Fixed installation because हर साल डेप्री सेम है. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड because हर साल you charge it on original cost. Why do we call it straight line? Straight line इसके लिए बोला जाता है because when you plot the depreciation amounts on the graph, when you plot the depreciation amounts on the graph, it forms a straight line. Okay, so these are years, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. These are the years, and this is the amount of depreciation. Okay, so first year we depreciation will be 2000. First year depre will be 2000. Next year again 2000. Next year again 2000. Next year again 2000. So when you plot these points on a graph, you will form a straight line. Okay, that's why it is called as straight line method. Okay, constant रहता है हर साल. Every year depre is constant. Now let us move to problem number 3. Third problem. Fixed installation method, but a big problem. वो क्वेश्चन अपने को दोनों तरीके से पूछा गया है. FIM भी है, RBM भी है. तो पहले will be solving it by FIM method, and then the same problem when we come across RBM, we'll be doing it by RBM method. Okay, let's begin. FIM के लिए ड्रॉ करना. You are supposed to prepare machinery account and depreciation account for 92, 93, 93, 94 and 94, 95. 3 years. एक पूरा साइड ले लेना लेजर के लिए. Take one full slide for ledger of machinery. छोटू सा depreciation. सर मशीनरी और डेप्री एक ही पेज पे या अलग अलग पेज पे? अलग अलग पे बनाओ तो अच्छा है. थोड़ा बड़ा सम है ना, तो ज्यादा स्पेस लेगा. वर्किंग नोट्स तो करना ही है तुमको, तो नेक्स्ट पेज जाने ही वाला है. करें स्टार्ट. थर्ड प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम नंबर 3. सम नंबर 3. A machinery of 28,000 was purchased on 1st April 92. It falls in which financial year? 1st April 92 I think falls in the year 92-93. बराबर. The 1st April 92, a machine of 28,000 was purchased on credit from Rajesh. मनन एंट्री करना चाहिए 1st April 92 को
मनन 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 पिता. Machinery to Rajesh. अच्छा, उसके आगे पढ़ो. However, it was installed for rupees 2000 on 1st June 92. Is it installed on the same day or some another day? Another day. Some another day. Okay. But entry क्या होगा? 1st June को entry क्या करोगे? Manan, what should be the entry on 1st June? You have installed the same machine, right? So any expense incurred on purchase of assets should be added up to the cost. Na? The entry will be same. It will be machinery to cash. Machinery to cash. Okay. But यहाँ पे peculiar situation है. Generally जब asset आता है same day पे install हो जाता है. ठीक है. But यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है. Asset खरीद रहे हो तुम लोग 1st April को, 3 महीने बाद उसको install कर रहे हो. The date of purchase and date of installation are different. Date of purchase and date of installation are different. तो कुछ बात नहीं है इसमें, टेंशन लेने वाला कुछ नहीं है काम. दो डेट पे अलग अलग एंट्री कर देने का, क्योंकि दोनों अलग अलग डेट का ट्रांजैक्शन है. तो पहला 1st April 92 will pass machinery to Rajesh, machinery to Rajesh, and that will be 28,000. Okay, machinery to Rajesh will be 28,000 on 1st April 92, and on 1st June 92. तो डेप्रिसिएशन कौन से डेट से कैलकुलेट होगा? 1 minute, I'll discuss. On 1st June 92, it will be to cash account. Yeah, bank account you can write. To cash or bank account, that will be 2,000. So machinery to Rajesh to bank is the entry, but क्योंकि अलग अलग पार्ट में हो रहा है, मशीन पहले लाया और इंस्टॉल बाद में किया, तो इसके लिए अलग अलग एंट्री. अभी मेरे को बोलो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन? 30,000. So you will charge depreciation on 30,000 only. Is that clear? And you will start depreciation from which date? 1st April or 1st June? 1st June. Why 1st June? क्योंकि 1st April को तो आया था, बॉक्स में पड़ा हुआ था, दुकान में पड़ा था, वैसे यहाँ पे पड़ा था. सेम डे अगर इंस्टॉल कर देते तो वहां से स्टार्ट होता. यूज करने का कहाँ से स्टार्ट किया? 1st June से, तो वहां से स्टार्ट होगा. डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन. ओके. So अगर date of purchase and date of installation are different, so always your depri will start from the date of installation. Okay, install करवाने के date से start, use करने के date. So 1st June से will start depreciating. Is that clear? Then on 1st October 92, another machine was purchased for 22,000. Isha, what should be the entry? 1st October 92. Machinery to bank. Machinery to bank. And is it in the same year or in the next year? Same year. Same year. 92, 93 है ना? Yes. April 92 से March 93 के बीच में ही पड़ रहा है. तो machinery to bank, how much it is? 22,000. Then on 1st April 93, half of the first machine was sold. Dixit, 1st April 93, does it fall in the same year or the next year? Next year, 93, 90. So I think this year is over. What are we supposed to do now? Depreciation. Let us calculate depreciation. कौन से डेट पे करना है? तो I think last date पे I will calculate it. What is the last date of this year? 31st March 93. 31st March 93 is the last date of this year. Correct? 31st March 93. Working note बना लेना. Working note number 1. Depreciation for the year 92-93. How many machines do we own right now? I think we own 2 machines. Let us name them M1 and M2. Because we are doing FIM, we charge depreciation on original cost. What was the original cost of first machine? Will we take as 28,000 or 30,000? 30,000. 30,000 पे what is the rate? They have given it at the end. It is 10%. And for how many months? एकदम ध्यान से सोच के बताना. 9. No. 10 months. 10 months. 10 months.
10 months. It is from 1st June. June पूरा आ गया. June, July, August, September, October, November, December, Jan, February and March. 10 months it is. 10 months. 1st July होता तो it would have been 9 months. Okay? एक महीने का गड़बड़ हुआ. पहला डेप्री रॉन्ग. पहला बैलेंस रॉन्ग. ओपनिंग बैलेंस रॉन्ग. नेक्स्ट दोनों बैलेंस रॉन्ग. सीधा 4 मार्क उड़ेगा. So be very alert. Okay? और इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप. इनमें मैं बताऊंगा how to verify the answer whether you have done it right or wrong. So 30,000 into 10% for 10 months, that comes to 2500. 2,500. And दूसरा मशीन का I think 22,000 का, उस पे भी 10% for how many months? 6. 6 months. Perfect. 6 months. So 22,000 per 6 months is 1,100. So I think my total depreciation is 3,600. 3,600 is my total depreciation. Is that clear? So let us go to the depreciation account and machinery account and post it. Machinery may buy depreciation 3,600. Sir, is it necessary to combine both the deprecs or we can write it separately? It's supposed to be combined because entry is happening on the same day, na? Okay. So again, depre to machine 2 times. So you combine it. Okay. 31st March 93 को by balance carried down will be 52,000. बराबर है? 52 minus 3 is 48,400. I think that is the balance. Get to balance BD 1493 को and go to depre account. उधर खत्म करना है. To machinery corresponding entry on 31st March 93 3,600 and same day you will make your final accounts. So ये चला जाएगा by P&L account 3,600. Okay, that's year 1. Is that clear? Let's proceed to year 2. क्या दिया है पढ़ो. On 1st April 93, half of the first machine was sold for 14,000 and its dismantling charges are 1,000. And on the same day, a new machine was purchased for 10,000. So basically, 1st April 93 ko you are selling. So what are you supposed to calculate? Whenever you see sale, what are you supposed to calculate? Profit and loss. Book value. Profit or loss. There's bound to be some profit or loss on sale. So let's make a working note. This is the most important note of all. To calculate your profit or loss on sale. Profit or loss on sale. Just calculate your profit or loss on sale. Now, ओरिजिनल कॉस्ट से शुरू करने का. जो भी एसेट बेच रहे हो उसको ओरिजिनल कॉस्ट से स्टार्ट करने का. तो क्या दिया है पढ़ो. On 1st April 93, half of the first machine. Which was the first machine, guys? 30,000 वाला. 30,000 वाला. Okay, तो ओरिजिनल कॉस्ट as on 1st April to June लिख सकते हो. 1st April to 1st June was 30,000. क्योंकि इंस्टॉल 1st June को किया है. Your depre will start from 1st June. Original cost was 30,000 less depreciation for the year 92-93 for the year 92-93 for 10 months. ऊपर से मिल जाएगा तुमको. अभी अभी तुमने कैलकुलेट किया. It is 2,500. So you get your W. तो पहले से आपने लिखा ना. Sorry. हाफ मशीनरी स्टोर है तो पहले से हाफ नहीं करना है. क्लियर नहीं आ रहा है आवाज. क्या बोल रही हो? लास्ट मशीन. वो बोल रही है कि अगर हाफ मशीन है ना, हाफ मशीन वॉज सोल्ड तो 15 आना चाहिए ना. अच्छा, हाफ. Okay, yeah. Half was sold, right. Half was sold, right. Half was sold to half of 30,000. Okay.
half of 30,000 you have to take. Sale is only done of half the machine, right? I do by mistake pura. Half of first machine is sold. So you take 15,000, 30,000 का half, and then depreciation भी half हो जाएगा. What will be the half depreciation? 1250. 1250. Yeah, perfect. So WDV adds on 1493. 10 महीने बाद 1493 कितना हो गया? इट इज 13,750. 13,750 का WDV. ओके, एंड आई थिंक 1493 is the date of sale. 1493 is the date of sale. So on the same day you are selling for how much? 13,000. 13,000. This was sold for 14 minus dismantling charges. कल भी हमने किया था, याद है? सेल का कोई भी खर्चा होता है तो डिडक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू डायरेक्टली. So कोई सेपरेट एंट्री नहीं आएगा. तो योर सेल वैल्यू is not 14, it is actually 14 minus 1, 13. तो 13,750 का मशीनरी हमने 13,000 में बेच दिया. So we got a loss on sale of 750. Now you remember how many things are we supposed to record at the time of sale? Three. Three things. What is the first thing? Depreciation for the part of the year. Current year में have we used this machine? Think and tell. No. No. यूज ही नहीं हुआ है तो वो पहला एंट्री बाय डेप्री मारने की जरूरत नहीं है. देन सीधा जाओ सेल वाले एंट्री पे. तो सेल वाला एंट्री ऑन 1493 विल बी व्हाट? कैश में बेचा है कि क्रेडिट में? तो आई थिंक कैश. तो बैंक मशीन होता है तो मशीन में क्या आएगा? तो आई थिंक बाय बैंक. मशीन में आ जाएगा बाय बैंक. कितना आएगा? 13,000. मशीन में बाय बैंक 13,000. 13,000 इज द सेल वैल्यू. एंड प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आई थिंक इट्स अ लॉस. सो एंट्री क्या होगा? लॉस टू मशीन या मशीन टू लॉस? लॉस टू मशीन. तो मशीन में आ जाएगा बाय लॉस और लॉस में आ जाएगा टू मशीन. बाय लॉस ऑन मशीन 1,000. इज दैट क्लियर? Both the entry will happen on 1493. Yeah. 1,000 या 750? 750 आएगा. Oh, 750. 750. 750. 13,000 का सेल था और 750 का लॉस था. Is that clear? 1,000 का कोई सेपरेट एंट्री नहीं आएगा. इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू. आगे दिया ऑन द सेम डे न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 10,000. सेम डे. सेम डे मतलब सेम 1493 को एक और खरीदा. तो मशीनरी टू बैंक कितने का खरीदा? 10,000. मशीनरी टू बैंक 10,000. Then on 31st March 94, the remaining half of the machine was sold for 14,000 and a new machine was purchased on that day for 15,000. Now, 31st March 94, does it fall in the same year or next year? Last day of the same. Last day of the same. Last day of the same year. इसी साल में आ गया. वापस सेल हो रहा है. सेम ईयर में दूसरा सेल हो रहा है. So make another working note for sale. Working note number 3 to calculate profit or loss on sale. Remaining half we are selling. Okay, the original cost as on between 1/4 to 1st June कितना लेने का है? हाफ ऑफ 30,000. ऊपर आधा बेचा, अभी वापस आधा बेच रहे तो 15,000. इसको भी डेप्रिशिएट करते जाओ. फ्रॉम 90 to 93, 10 months we have used, so that was 1250. आधा है, इसके लिए आधा ले रहा हूँ डेप्री. You arrive at WDV on 1494, 13,750. Did we sell it on 94 में बेच रहे हैं. 1493. क्या बोल रहा है? 1493 को 13,750 का हो गया.
अभी did we sell it on 1493? No, we No. sold it, but on 31st March 94, which is what the last date of this year. 93, Sir, we sold 94 it का for 14,000, not 15,000. नहीं, this is the original cost. This is not the Oh, sale value. oh, ठीक है, ठीक है. हाँ, यहाँ से इसको पहले तो बुक वैल्यू ढूंढनी है ना, डेप्रिशिएट करते करते करते, फिर उसको कंपेयर विद सेल वैल्यू टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. अभी 1493 को 13750 का हो गया है, बट 93 94 में भी वापरा है फुल ईयर. तो लेस डेप्रिसिएशन 93 94 फॉर फुल 12 months. Now we are doing FIM or RBM? FIM. FIM. So you charge depreciation on original 1500. cost. And what is the original cost? Original cost is 30,000. 15,000 का 30 का आधा 15,000 पे 10% फुल ईयर कितना होता है? 1,500 होता है. Is that clear? 1,500 रुपया होगा depreciation. And then you get WDV on 31st March 94. That is 11,750, I think. नहीं, 12,250. 12,250. 12,250 is our WDV on 31st March 94. 12,250. ये आ गया अपना डेट ऑफ सेल. इस ट्रांजैक्शन में और इस ट्रांजैक्शन समझ रहा है, दोनों सेल में फर्क समझ रहा है. वन इज हैपनिंग ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर एंड द सेकेंड वन इज हैपनिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर. तो पहले डेट वाले पे करंट ईयर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, बट ये तो पूरा साल यूज किया, तो पूरा डेप्री मारा. अभी कंपेयर इट विद सेल वैल्यू. ये कितने में सेल किया है, रीड करो. We have sold this machine for 14,000. 14,000 में बेटा. अभी इसमें कोई डिसमेंटलिंग चार्जेस नहीं दिया. तो हियर वी आर मेकिंग आई थिंक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 1750. अग्री? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 1750. ये समझ आ रहा है सबको? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? टेल मी. All of you got it? How many things are we supposed to record at the time of sale now? 3 items. 3 things we are supposed to record. First step क्या है? First thing we are going to record is depreciation. तो depreciation आएगा कि नहीं आएगा ये वाले मशीन का? आएगा. 12 महीना वापरा है करंट ईयर में, तो फुल 12 months का बाय डेप्रिसिएशन. ओके, दिस इज ऑन मशीन सोल्ड. MS मतलब मशीन सोल्ड. दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. कितना था करंट ईयर का डेप्रिसिएशन? आई थिंक इट वाज 1,500 पूरा साल जो यूज किया. दूसरा एंट्री अपना सेल का. सर हाँ सर, लास्ट डेट पे मशीन सेल किया है तो दूसरे 2 मशीन का भी डेप्री निकाल के ऐड करके कर सकते हैं. यस यस यस. लास्ट डेट पे सेल किया है तो दूसरे 2 मशीन का भी करके तीनों का एंट्री एक साथ कर सकते हैं. Yes. ये सेल का, इसके लिए हम अलग से पासिंग. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज क्लब, नो प्रॉब्लम. ओके, सेम डेट है क्लब करने का, हमेशा क्लब करने का बेटर है. तो बाय डेप्रिसिएशन ये सोल्ड है ना, इसके लिए सोल्ड का अलग लिया है मैंने. 2 कॉमन मशीन है तो हमेशा साथ में ही करना है. देन बाय बैंक. बाय बैंक व्हाट इज द सेल वैल्यू? 14,000. So bank to machine is 14. And what is the entry for profit? Machinery to Machinery to बताया था. Don't write bank to profit. It is machine to profit. The non-cash. So machine to profit on machine. That should be how much? कितना मिला अपने को profit? 1,7. All 3 entries will happen on 31st March 94. I think we have completed the year 93-94. एक और हुआ है transaction, sorry. एक और हुआ है. And on the same date, a new machinery was purchased for 15,000.
34 को एक और है, तो टू बैंक 15,000, टू बैंक अकाउंट 15,000. Now I think we can बाकी के Calculate. मशीन का डेप्री बाकी है. depreciation. Sorry. हाँ बाकी हाँ वो डेप्री कर, क्या बोल रही हो? डेप्री कर रहा हूँ कैलकुलेट. हाँ ओके. By depreciation account, this is which depreciation on other machine, remaining machine. Okay. Now as Satvik was saying, we can club these two entries. ये दोनों by depre same day हो रहा है, तो we can club. Okay. क्लब कर दोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम. उल्टा बेटर है, बट ऐसे अलग अलग सेल और ये अलग अलग लिखा, सेल का अगर अलग से करना है और ये अलग से करना है तो भी मानना है, चलेगा. ओके. नाउ लेट्स कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर. हाउ मेनी मशीन्स डिड वी ओन? देख लो पहले ध्यान से, कीप अ रिकॉर्ड. ये था मशीन नंबर 30,000 वाला था, मशीन नंबर 1. मशीन नंबर 2 था 22,000 का. मशीन नंबर 3 था 10,000 का. एंड मशीन नंबर 4 है 15,000 का. 4 मशीन है हमारे पास, करेक्ट. 4 मशीन वी आर हैविंग. इसमें से 1 मशीन 30 आधा आधा करके बिक चुका है. तो विल यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन? No. So which are the 3 machines we are supposed to calculate depre? 22,000, 10,000 and 15,000. Agree? So calculate करना है. Make a note. Working note number 4. This is depreciation for the year 93-94. Machine 2, machine 3 and machine 4. मशीन 2 कितने का था? 22,000. मेरे को बात बोलो, ये 22,000 वाला मशीन कितना महीना यूज किया है करंट ईयर? How many months have we used this machine in the current year? Full year. 12 by 12, 2200. दूसरा वाला जो है 10,000 का, उस पे 10%. For how many months? Think and tell me. 10,000 वाले पे कितना महीना करंट ईयर? फुल ईयर. क्योंकि फर्स्ट डेट को खरीदा है ना, फर्स्ट डेट को, 1 अप्रैल 93 को यह परचेज, तो फुल ईयर. ये भी 12 महीना वापरा, तो 10 का 10% इज 1,000. तीसरा मशीन था जो ये साल खरीदा है 15,000 का, जो लास्ट डेट पे बाय किया है. ओके, लास्ट डेट पे भी आप परचेज. 1 सेकेंड ना गाइस. हेलो कृष्णा, सॉरी जरा लेक्चर में हूँ मैं, फोन करूँ तुमको बाद में? ओके, ऑडिबल. चल, नाउ थर्ड मशीन जो है 15,000 वाला, विल यू चार्ज एनी डेप्रिसिएशन ऑन दैट? No. व्हाई? बिकॉज लास्ट डेट है, इट इज 0. ये नील नहीं भी लिखा तो चलेगा. ओके, तो थर्ड मशीन को लेने का जरूरत नहीं है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन 0 मंथ, तो 0 आएगा. तो 3,200. So 3,200 is our total depreciation. Is that clear? 3,200 is our total depreciation. बैलेंस करना है बाय बैलेंस शीट. 48, 58, 63, 73, 74, 75, 150 आ रहा है क्या टोटल? हाँ हाँ. 75, 150 और ये आ रहा है 13, 15. 42,700. बैलेंस बोल रहे हो 42,700. 42,700 is the balance. All of you got that? Please check, calculate करके देख लो. 42,700, ठीक है. 42,700 is your balance. So that will be 2 balance BD 1494. कैलेंडर ईयर चेंज नहीं हो रहा है, मार्च से अप्रैल में जा रहे हैं, तो 94 ही रहेगा. यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो, एनी डाउट?
ओके, प्रोसीड लास्ट ईयर। क्या हो रहा है पढ़ो। On 30th June 94, new machine is purchased for 12,000. Carriage on which was 1,000, fitting charges were 500, and brokerage was 1,500. All these expenses, what are we supposed to do? Real. ये सभी expenses सर अपने को क्या करने का? डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, डेप्री अकाउंट रह गया ना, डेप्री बना लेते हैं। सेकेंड ईयर का करस्पॉन्डिंग एंट्री मार दो। 31st March 94 को to machinery. I have written twice, so I am writing 2 entries. You can club and write 1 single entry also, no problem. This is to machinery. सेम डे हो रहा है, एक सेल का है और एक अदर मशीन का है, और ये चला जाएगा बाय पीएल। बाय पीएनएल तो साथ ही में जाएगा, उसको अलग अलग मत कर। 4,700। ओके, यहाँ आगे चलो। What is happening now in the third year? Third year में on 30th June 94, a new machine is purchased for 12,000. Carriage on which was 1,000, fitting charges 500, and brokerage 1,500. क्या करने का ये? Add to machine. कॉस्ट पे सब कुछ ऐड कर दे उस पे, बराबर है। कॉस्ट कंसेप्ट, एसेट्स जो भी खरीदा पूरा हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐड कर दो। अच्छा, कितना होता है? 12, 13, 15,000। 15,000 का मशीन है, और ये सब खर्चे सेम डे पे हो रहा है। तो कॉमन एंट्री मशीन टू बैंक कब हो रहा है? 30th June 94, falls in the year 94-95. This machinery was sold on 31st March 95 for 10,000. एक ही साल में बेच दिया, सेम ईयर में बेच दिया। इनफैक्ट सेम ईयर में यू हैव सोल्ड। So let us make another note for profit or loss on sale. What was which machine have we sold? You understood, guys? Which machine you have sold? You got it. Original cost as on 1 नहीं, कभी खरीदा था 30th June को। 30th June 94 was 15,000। यही मशीन जो अभी रिसेंटली खरीदा उसको हमने तुरंत 6 महीने में बेच दिया। 6 नहीं, 9 महीने, 9 months के बाद 31st March 95 को बेच दिया। तो लेट्स डेप्रीशिएट इट। पहले तो लेट्स डेप्रीसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स वी चार्ज डेप्री? 9 months। 15,000 का 10% for 9 months I think is 1,125. Yes. Yes, yes. You arrive at WDV as on 31st March 95। 31st March 95 लिखो, 1495 लिखो, एक ही बात है। सेल के हिसाब से अपना डेट एडजस्ट कर लेने। 31st March 95 को बेचा तो आई एम राइटिंग 31st March 95। 1495 को बेचा होता तो लिख देने का 1495। एक दिन आगे पीछे फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज 13,875 WDV, राइट? लेस सेल कितने में बेचा है? was sold for 10,000 rupees. Was sold for 10,000. You arrive at, I think, loss on sale. It's a loss on sale of 3,875. Agree? 3,875 का लॉस हो गया। अब क्या करना है? How many things are we supposed to record at the time of sale? Again, 3 items. Item number 1 is depreciation for the part of the year used. ये भी वापस लास्ट डेट पे हो रहा है, तो वी कैन क्लब इट विद द रिमेनिंग डेप्रिसिएशन। चलेगा? क्लब करूं, समझ जाएगा? लेट्स क्लब हियर। ओके, क्लब करोगे तो बेटर ही है। 31st March 95 को एंट्री लिखना है बाय डेप्रिसिएशन, अमाउंट मत लिखना। इसमें हम लोग क्लब करके लिखेंगे। कौन सा क्लब करके लिखेंगे समझ रहे हैं? ये जो सोल्ड मशीनरी का 1125 है, ये प्लस रिमेनिंग मशीन का करके बाद में लिख देंगे अमाउंट। ठीक है?
क्लब कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट डेट पे सेम डेट पे हो रहा है, ठीक है। अलग अलग किया वांदा नहीं है, सेल के वक्त चलेगा। देन 31 मार्च 95 को बाय बैंक कितने में बेचा हमने, तो आई थिंक 10,000 में बेचा। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग यू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल? Loss. Record your loss or profit. So here it is, I think, a loss. So what is your loss ka entry? Loss to machine or machine to loss? Loss to machine. लॉस टू मशीन। Loss to machine. मशीन में बाय लॉस ऑन मशीन कितना आएगा? लॉस कितने का हुआ था? 3857 3875। ओके, अभी और कुछ खरीदा वरीदा तो नहीं है ना? बस बहुत खरीद लिया। अभी चलो डेप्रीसिएशन चालू करते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन हाउ मेनी मशीन? देखो 4 तो थे लास्ट ईयर के लिए, ये 5वां ऐड हो गया ये साल। तो टोटली वी हैड 5 मशीन, बराबर है। बट 5 मशीन में से फर्स्ट मशीन इज गॉन एंड आई थिंक 5th मशीन इज ऑल्सो गॉन। सो वी आर लेफ्ट विथ बीच का 2, 3 एंड 4। बीच का 3 मशीन बाकी है, उस पर डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा। तो लेट अस मेक द लास्ट वर्किंग नोट नंबर 6। depreciation for the year 94-95, machine 2, machine 3 and machine 4. Okay, machine 2 I think was worth 22,000, pay 10%. For how many months have we used this machine in the current year? 9 क्या 9? 12 महीने। ये वाला ऊपर से टपका है, ऊपर से टपका हुआ हर एक मशीन 12 महीना ही रहेगा, ठीक है। दूसरा मशीन था 10,000 का, उस पे 10% फॉर 12 मंथ। ये भी 12 मंथ आएगा क्योंकि लास्ट ईयर से टपका है। 12 का 12 महीना आएगा, यस और नो। तीसरा मशीन था 15,000 का, उस पे भी 10% फॉर हाउ मेनी मंथ गाइस? 12. Full year. ये भी 12 मंथ, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर के लास्ट डेट पे खरीदा था। दिस ईयर यू हैव यूज्ड इट फॉर फुल ईयर, सो 12 मंथ। विल यू कैलकुलेट इट ऑन द 5th मशीन रिसेंटली परचेज ऑफ 15,000? नो, बिकॉज वो ऑलरेडी कर लिया। यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है, ये 9 महीने का डेप्री हमने सेल के वक्त रिकॉर्ड किया हुआ है। ये ऐड ही करने वाले हम लोग, इस डेप्रीसिएशन में वो ऐड ही होने वाला है। तो 3,000, 4,000, 5,200 आया। 5,200 टोटल। अभी 5,200 प्लस 1,125 टोटल डेप्री का एंट्री 4,700 आएगा सर। हाँ 4,700 आएगा, क्या हो गया? प्लस 1,125 होगा। 3,200, 4,700, सॉरी 4,700, 4,700, 4,700 प्लस 1,125, 5825। ये दोनों का मिला दिया मैंने, सेल और अदर मशीन। बस काम तमाम कर लेना है बैलेंस। तो बाय बैलेंस carried down 42, 47, 57, 700 और ये बैलेंस कितना आ रहा है देखो 38,000 48 एग्जैक्ट 48,000 exact 38,000 exact and get the depreciation account। एक ही एंट्री आएगी 31 मार्च 95 को to machinery, that was 4,700 and by नहीं 4,700 5825 was 5825 दोनों का मिला के and by P&L 5825 क्लब कर दिया हमने तो 5825 एक ही एंट्री आएगी। This is your problem. How to verify your answer? How to verify whether you have done it right or wrong?
बताया था शॉर्टकट, याद है? 11th स्टैंडर्ड. How to verify whether this 38,000 is correct or no? जो मशीनरी बाकी है उसमें डेप्रिसिएशन Exactly. ये क्या है 38,000? This is the book value of the remaining machine. तो जो भी बचा हुआ मशीन है उसका बुक वैल्यू. ओके, तो फटाफट कैलसी उठा के चेक कर सकते हो. देख लो, ये पहला मशीन 10,000 का था, बराबर है. इसको हमने 2 साल डेप्रिशिएट किया, तो 10,000 माइनस 2,000, इसका बुक वैल्यू हो गया 8,000, बराबर. दूसरा मशीन था 15,000 का. ये 15,000 वाला मशीन को 1 साल डेप्रिशिएट किया है, तो 15,000 माइनस 1500, 13,500. और तीसरा मशीन कौन सा? 22,000 वाला है. 22,000 वाले को हमने फर्स्ट ईयर में कितना 1100 से कम किया, और ये 2 साल में 22,200 से कम किया. फुल ईयर वापरा था, तो 1100 और 4,400 माइनस करो, तो 22 माइनस 5,500 इज 16,500. इन तीनों का टोटल मारोगे तो 38,000 मिलना चाहिए. 16,500 प्लस 13,500 प्लस 8,000. मैंने क्या किया, रिमेनिंग मशीन का फटाक से डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू ढूंढा. तीनों का बुक वैल्यू ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा 38,000. सिंपल. डिड यू अंडरस्टैंड क्या किया? 22 का मशीन था, पहले साल 1100, फिर 2 साल 2,200. 10,000 का 2 साल 1,000, 2,000. 1,500 का एक ही साल 1,500. डेप्रिसिएशन माइनस करो. ये वेरीफाई करके चेक कर सकते हो. यू शुड गेट 38,000. ओके, कैलकुलेटर है तो फटाक से यू कैन डू इट. कर लो, सम कर लो. कॉम्प्लिकेटेड सम था, लेकिन ब्रेक डाउन करके करने का. ऑल एंट्रीज आर क्लियर. सेल, प्रॉफिट, ऑल वेरिएशंस वर देयर. सेल पे डिसमेंटलिंग चार्जेस था, क्रेडिट परचेज था, परचेज एंड इंस्टॉलेशन डेट डिफरेंट था, एक सेल पे प्रॉफिट, एक सेल पे लॉस था, हाफ द पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड था, एंड सेम ईयर परचेज एंड सेल भी था. बहुत सारे वैरायटी कवर हो गए एक सम. पूरा सम क्लियर है? कभी रिवाइज करना हो तो ये सम और एक सम देता हूँ. 2-3 सम देखोगे तो एफआईएम खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट वन, कम टू प्रॉब्लम नंबर. सर इसमें जर्नल एंट्री भी काटना जर्नल है ना? एंट्री दिया. नहीं, जर्नल एंट्रीज है ना, मैं तुमको बोलता हूँ. ठीक है, चलो 94-95 का दिया है, करो. चलो 94-95 का जर्नल ड्रॉ करो. 94-95 ड्रॉ द जर्नल फॉर 94-95 थर्ड ईयर. एक ही साल का पूछा है. 1 ईयर का जर्नल 94-95 ड्रॉ. Now journal is based on ledger only. और कभी फुल फ्लेजेड सम का जर्नल नहीं आएगा. ठीक है, पर्टिकुलर ईयर का ही दे. लास्ट 1 पर्टिकुलर ईयर, पूरे सम का जर्नल कभी पूछते नहीं है. एंड जनरली दैट पार्ट इज दैट ईयर इज वेर यू हैव सेल. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में करते थे ना जर्नल एंट्री, सेम वे वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द लेजर. गो डेट वाइज, ड्रॉप द जर्नल. Very easy it is. Need to take care of just 2 extra entries. I'll tell you at the end. Let's begin. Yeah, draw. Okay, journal entries, journal proper, common journal it is. सार्वजनिक, सब्सिडरी बुक्स नहीं है.
Go date wise, okay? Go date wise. Very first entry in the year 94-95. Can you tell me what will be your first entry in the year 94-95? Machinery to bank. Machinery to Machinery to bank. bank 15. बैलेंस का कोई एंट्री नहीं होगा. मशीनरी टू बैंक 15,000. मशीनरी टू बैंक 15,000. लिख दो. मशीनरी टू बैंक 15,000. Being machine purchase for cash. या being machine purchase simple. Being machine purchase 15,000. Machinery to bank 15,000. Then what will be the next entry? Sale का सीधा last date 31st March 95. 31st March 95. सब एक ही दिन पे हो रहा है तो you can तो आगे पीछे चलेगा, no problem. Just a minute. हेलो हेलो. हाँ एक्चुअली सर जरा लेक्चर में छूंगा मैं फोन को. सेकेंड एंट्री यू कैन क्लब. ओके क्लब भी कर सकते हो और आगे पीछे भी करो इंडिविजुअली तो भी चलेगा. ओके साइड एडवाइस डेप्रिसिएशन का एंट्री अलग रखना और बैंक लॉस का एंट्री मर्ज कर देना चलेगा. ओके तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 5825 ये अलग रखो. डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 5825 31st March 95. Depreciation to machine 5825 31st March 95. Being depreciation charge. Being depreciation charge. And bank or loss you can club. So what will be the entry? Bank loss on machine to machine. Bank account debit 10,000. Loss on machine debit 3875 to machine 13875. बैंक लॉस टू मशीन. इनको भी सेपरेटली करोगे नो प्रॉब्लम चलेगा. बैंक अलग लॉस अलग वांदा नहीं है. ओके तो बैंक लॉस टू मशीन दैट इज 10,3875 and 13,875. Being machinery sold at a loss. Being machinery sold at a loss. Being machinery sold at a loss. बैलेंस का कोई एंट्री नहीं है, खत्म हो गया. अभी दो एक्स्ट्रा एंट्री करना है. कोई बता सकता है व्हाट आर द टू एक्स्ट्रा एंट्रीज? P&L to depre. Exactly. One is P&L to depre because depre being nominal you need to transfer it to P&L. So P&L to depreciation ये भी एंट्री इसी साल का है. बाय P&L लिखा है ना तुमने नीचे 5825 लास्ट डेट 31st March 95. P&L to depreciation 5825. Being depre transferred to P&L. Closing entry for depre. This is the closing entry for depre. Okay, being closing entry for depre or you can write depre transferred to P&L. Being depreciation transferred to P&L. और एक है और एक नॉमिनल अकाउंट है. मशीनरी टू कैपिटल लॉस. लॉस मशीनरी वाला नहीं, वो तो सब एसेट लाइबिलिटी का लिस्ट दिया होगा तभी होगा. लॉस तो करना पड़ेगा. लॉस इज इंडिविजुअल नॉमिनल अकाउंट. So that also goes to P&L. So P&L to loss on machine. You can club these two entries also. Depre and loss को club कर सकते हैं. P&L to loss on machine 3875. P&L to Sir? loss on machine. Yeah. अगर लेजर में हम लोग ने डायरेक्टली लिखा हुआ था P&L अकाउंट तो फिर ये एंट्री नहीं करने आएगा. की जरूरत नहीं थी. तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है. तो फिर तुमने डायरेक्ट बाय P&L लिखा है तो ये नहीं आएगा. Okay. So this is, since you have written loss, so it is P&L to loss 3875 being closing entry pass for loss या loss transferred to P&L. Closing entry pass for loss on machine या loss on machine transferred to P&L. Loss on machine transferred to P&L. 31st March 95. Is that clear? सर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से नहीं करना है. नहीं वो बाद में करेंगे. तो मेथड स्टार्ट करने दो मेरे को, बाद में वापस आएंगे इस प्रॉब्लम पे. अभी मेरे को एक बात बोलो. सेकेंड ईयर का जर्नल एंट्री. सेकेंड ईयर का जर्नल एंट्रीज में क्या क्या आएगा देखो. व्हाट विल बी द सेकेंड ईयर का जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट एंट्री? Machinery to bank. 93-95.
मशीनरी टू बैंक, ओके लिखना नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओरली डिस्कस कर लेते हैं. मशीनरी टू बैंक 10,000 फर्स्ट एंट्री 1493. Big machinery purchase. What will be the next entry? Bank loss to Machinery to machinery. profit. Bank Bank loss loss to on machine to machine. Bank loss on machine to machine. Okay. 13,750, 13,750. Okay. उसके बाद next entry 31st March 94 को And Machinery to And And to machine to bank. machine to profit. पहले तो डेप्री टू मशीन you can club 4,700. डेप्री टू मशीन 4,700. Is that clear? डेप्रीसिएशन चार्ज. ओके. फिर सेल का एंट्री में क्या आएगा तुम्हारा? बैंक टू मशीन टू प्रॉफिट. बैंक टू मशीन टू प्रॉफिट. ओके. बैंक में आएगा 14,000, टू मशीन में आएगा 12,250 सॉरी, टू प्रॉफिट में आएगा 1,750. इज दैट क्लियर? बैंक में आएगा 14,000, टू मशीन में आएगा 12,250. ओके. 12,250 वाज द बुक वैल्यू. टू प्रॉफिट आएगा 1,750. इज दैट क्लियर? अगर ऐसे नहीं जम रहा है अलग अलग एंट्री करो, वांदा नहीं है. बैंक टू मशीन 14, मशीन टू प्रॉफिट 1,750. नो प्रॉब्लम. बैंक टू मशीन 14,000, मशीन टू प्रॉफिट 1,750. देन उसके बाद क्या आएगा? एक और खर्चा है तो मशीन टू बैंक 15,000, मशीन टू बैंक 15,000. दिख रहा है यहाँ पे? उसके बाद दो एक्स्ट्रा एंट्री टू ट्रांसफर द नॉमिनल अकाउंट. तीन एक्स्ट्रा एंट्री, तीन नॉमिनल अकाउंट है यहाँ पे. कौन से हैं? Depri. Profit loss, debris. डेप्री, P&L to loss. लॉस एंड प्रॉफिट. Profit. तो डेप्री और लॉस का एंट्री क्या होगा? डेप्री और लॉस का एंट्री P&L टू लॉस टू डेप्रीसिएशन. P&L to debris to loss. Loss to depreciation. And what about profit का entry? Profit transfer का entry will be Profit to P&L. profit to P&L. Profit on machine to P&L 1,750. Is that clear? Your journal will always end with transfer entry. Okay. Loss, debris और profit. यही तीन नॉमिनल अकाउंट्स होंगे जिसको ट्रांसफर कर. बढ़ते हैं आगे. प्रॉब्लम नंबर 11. 11th सम ले लो. Take out sum number 11. सम मशीनरी अकाउंट ही बना है फॉर 4 years. 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82. 4 years. Rate is 10% FIM. शरद एजेंसी 78, 79 से शुरू करना है. देखो ध्यान से पढ़ो क्या दिया. शरद एजेंसी machinery account. Sharad Agency's machinery account shows a debit balance of 36,000 on 1st July 78. So year closes on 30th June. देखो last line पे दिया. This is July to June का sum. Not April to March, not Jan to December. It is July to June. So 1st July 78 is the first date of the year. 1st July 78 को क्या एंट्री आएगी? मशीनरी टू बैंक, सॉरी टू बैलेंस बीडी. खरीदा नहीं है, बैलेंस है. It showed an opening balance of 36,000.
Can you tell me guys first year or a continuing year? कंटिन्यू कंटिन्यूइंग ईयर, फर्स्ट ईयर नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूइंग ईयर। तो जैसे हम सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर से करते थे वैसे करने का, ठीक है। लेकिन वी आर डूइंग FIM, राइट? इफ वी आर डूइंग FIM, वी नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? बैलेंस और ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट। इसीलिए वो लोग ने आगे देखो इन्फॉर्मेशन दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 60,000 रुपीज, ठीक है। इस 36 वाले बैलेंस के मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 60,000। फर्स्ट मशीन अपना है 60,000 का, याद रखना ये। इज दैट क्लियर? अब इसमें 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, मालूम नहीं है अपने को, लेकिन 60,000 के ओरिजिनल कॉस्ट के मशीन ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। The next, on 1st January 79, Sharad Agency got additional machinery for 48,000 and spent 2,000 on installation. So tell me, 1st January 79 falls in which year? current year. Current year? Akka? All of you got that? हाँ. July to June. So 1/1/79 to bank account. What is the cost? I think that is 50,000. 50,000 का कॉस्ट है, बराबर। One more machinery costing 25,000 was purchased on 30th June 79. Tell me guys, 30th June 79 falls in which year? Same year, next year. Same year, last day. Same year, last date. Same year, last date. ये डेट का ध्यान रखना। तो मशीनरी में वापस टू बैंक एक और खरीदा 25,000। अब सोच के बताओ टोटल कितने मशीन है हमारे पास? Minimum 3. 3 machine. Then on 30th June 80, a part of the machinery, 30th June 80 falls in the next year. तो उसको बाद में देखते हैं। पहले तो इस पे डेप्री करना है चार्ज। कौन से डेट पे चार्ज करना है डेप्री? 30th June 79 को चार्ज करोगे, बराबर है। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 3 machines we are having, to make a working note, depreciation for the year 78-79, machine 1, machine 2, machine 3. What is the value of first machine? Original cost 60,000 का 10% for how many months? 60,000 वाले पे how many months? Tell me. पहले वाले पे कितना महीना है? फुल ईयर, क्योंकि शुरू से एंड तक था। दैट इज 6,000। दूसरा मशीन, सेकेंड मशीन वॉज इस साल खरीदा हुआ 50,000 का, 50,000 का 10% फॉर हाउ मेनी ईयर, हाउ मेनी मंथ? सोच के बताना है। 6 months. Very good. 6 months. Because you bought it on 1st January, right? January to June. तो ये होता है I think 2,500. And what about machine 3? नहीं आएगा। नो डेप्री। नहीं आएगा, no depre, nil. So 8,500 is my total depreciation. Is that clear? 8,500 is our total depreciation. Simple. And get your balance now. By balance carried down 104750 750 कहाँ से आया? 8,500 नहीं नहीं 102500। हाँ 102500 और टोटल कितना आ रहा है? 11100। सर एक डाउट है, इसमें आगे लिखा है कि 30th जून को सेल किया, तो नहीं आएगा ये साल में? 30th जून 80 है, 80 मतलब 79 80 में। हाँ 30th जून 80 है नेक्स्ट ईयर,
तो ये साल खत्म हो गया, डेप्री अकाउंट नहीं बनाना है, बट अगर होता तो 2 ही एंट्री आता, टू मशीनरी और बाय पीएनएल. इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ईयर नाउ. 7980. रीड 7980 में क्या हुआ? On 30th June 80, a part of the machine acquired on 1st January 79 was sold for 7250. The original cost of which was 10,000. The original cost of which was 10,000. तो देखो क्या बोल रहा है, कौन सा वाला मशीन में से हम पार्ट बेच रहे हैं? Which machine का पार्ट वी आर सेलिंग? फर्स्ट जैन वाला. 1st Jan 79 वाला, मतलब ये 50,000 वाला दिखा है तुमको? 50,000 वाला मशीन में से 10,000 का पार्ट बेच रहे हो. जब भी कुछ there is by some profit, let us calculate profit or loss on sale. Start with original cost as on 1st January 79, क्योंकि 1st January 79 वाला मशीन में से बेचा है. Have we sold the full machine or only a part? I think we have sold only a part which had an original cost of 10,000. तो नोट में कितना लिखोगे? 10. 50,000 नहीं लिखना है, जैसे लास्ट में या हाफ मशीन सोल्ड. So 10,000 का डेप्रीसिएशन करते जाओ. लेस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 78-79, 6 महीना यूज किया है, कितना आएगा 6 मंथ का डेप्री फर्स्ट ईयर का? इस पे आई थिंक 500 आएगा. मिला सबको? हेलो. देन यू गेट WDV ऑन 1st July 79, 6 महीने बाद 9,500. Are you understanding what is happening? Hello, 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 all of you. 10,000 वाला ही पार्ट बेचा, उसका नोट बना रहा हूं मैं. पहले साल में 6 महीना यूज किया, 17 को उसका WDV मिला. अभी करंट ईयर 7980 में कितना वापरा है चेक करो. When have we sold it? We sold it I think on the last date, 30th June 80. तो फुल ईयर यूज किया. फुल ईयर का ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 का 10%. ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 लेने का, 50 नहीं, तो 10 का ही बेचा. तो 10,000 का 10% is 1,000. So you get WDV on 30th June 80. That is our date of sale. The WDV came to 8,500. WDV came to 8,500 and now you subtract your sale value. कितने में बेचा चेक करो जरा. And we sold it for 7,250. Correct? So you arrive at your loss of sale of 1,250. Arrive at your loss on sale of 1,250. Is that clear? Now, how many things you record at the time of sale? So 3 things. 3 things you are supposed to record. ये balance लेके आओ पहले. Balance is 102,500. Date will be 1/7/79. With 3 things we are supposed to record. First is the depreciation. Again, since it is the last date, you can club. ये machine और other machine का depre you can club. So I'm not writing the amount. I'm keeping it blank. ठीक है? Then 30th June 80 को buy bank. What's my sale value? So 7,250. And there's a loss. So obviously it will be buy loss. Buy loss on machine 1,250. Is this clear? और कुछ हो रहा है क्या 30th जून को देख लेने का? नहीं, और कुछ नहीं हो रहा है. So I think year is over. You calculate depre. How many machines do we have now for calculation of depre? बोलो. अभी कितना मशीन है अपने पास? अदर मशीन में कितना बचा है? 3 मशीन बचा है.
देखो कि कौन सा तीन है, पहला 1000 वाला तो है ही, दूसरा 50 का हो गया अभी 40 और तीसरा 25 वाला, बराबर है। 50 वाला पूरा नहीं बेचा था तो 40 का पड़ा हुआ है उसमें से। तो नेम देम M1, M2, M3। पहला वाला कितने का था, 60,000 लेना है ओरिजिनल कॉस्ट का 10% फॉर फुल ईयर, क्योंकि ऊपर से टपका तो फुल ईयर यूज हुआ है। दूसरा वाला 50 मत लेना, 40,000, ओके। 10 we have sold, so 10% for ये भी 12 months, all of you got this, remaining 40 we have used it for 12 months। एंड तीसरा वाला जो लास्ट डेट पे लिया था हमने, कितने का था वो, 25,000 का 10% for how many months this one, third machine, 12 months. This also will be 12 months, so that is 2,500, so total is 12,500। is that clear? 12,500 प्लस ये सेल वाले का डेप्री, कितना था सेल वाले का डेप्री, 1,000 रुपया दिख रहा है, ये करंट ईयर का 12 महीने का 1,000 रुपया। ये 1000 और ये 12,500 दोनों ऐड करके रिकॉर्ड कर दो यहाँ पे, टोटल डेप्री मिलेगा 13,500। इसमें दोनों आ गया, 1,000 on machine sold and 12,500 on other machine, okay। Now get the balance. What is the balance, tell me? 8,500। कितना आया बैलेंस, 80,500। हाँ, पक्का, 80,500, राइट? यस। 8,500 is the balance, please check. Comfortable till this point, all of you? Normal thing it was, now to balance BD. 80,500, 1,780. What is happening in 8081 read? On 31st December 81, the agency sold out the machinery for 16,000. It was bought on 30th June 77 for 18,000. अब tell me, 31st December 81 falls in which year? नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में जाएगा, 81 82 में जाएगा, घाई मत करना। तो ये 80 81 में कुछ हुआ है क्या? 80 81 में 80 81 में कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये साल है जुलाई 80 से जून 81, तो ये साल के बीच में ना परचेज है ना सेल है, तो क्या है? डेप्री। डेप्री है, वो तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो 30th जून 81 को पहला डेप्री कैलकुलेट कर लेने का। ये 81 का सेल तो इसके बाद होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा। अभी भी कितना मशीन हमारे पास है? आई थिंक द सेम 3 मशीन वी ओन, 60, 40 एंड 25। तो 60 वाले पे फुल ईयर 6,000, 40 वाले पे फुल ईयर 4,000 और 25 वाले पे भी फुल ईयर 2,500। माय टोटल डेप्री इज 12,500, बराबर। एंड देन गेट द बैलेंस ऑन 30th June 81 बाय बैलेंस CD 80,000। कितना आया? 68,000। 68,000 इज योर बैलेंस, प्लीज चेक। ये साल बीच में ऐसा कुछ भी घुसा देगा, गापची मार देगा। रीड द डेट प्रॉपरली। देन टू बैलेंस brought down 68,000. This is on 1781. Now we are in the year 81 82. Now we are selling. देखो क्या दिया है, यहां तक हो गया सबका? ऑल ऑफ यू में यहां तक डन? सीधा बाकी है तो बोल दो। The important part. Next part is important. Okay? Now very carefully read. 31st December 81, agency sold out the machinery for 16,000, which was purchased on 30th June 77. 77
फॉर 18,000। मतलब ये 18,000 का मशीन कौन से मशीन का हिस्सा होगा? 50,000 वाला जो फर्स्ट 60,000 जो सबसे पहला वाला मशीन था ना, उसका हिस्सा है। समझ आ रहा है बात? कैसे मालूम पड़ा उसका पार्ट है? एक दिन का बोलो। जैसे 77 दिया है ना परचेज का डेट। 77 तो हमारे 1 साल पहले का डेट है। तो एक ही मशीन पहले से टपका था 60,000 वाला, उसी का पार्ट होगा। तो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो स्टार्ट ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 30th जून 77 कितने का था? 18,000 का था। ये 60 वाले का हिस्सा था, तो 60 वाले में से ही बेच रहे हो आप 18,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऑल ऑफ यू गॉट? समझ में आ गया? चलो करते जाओ, घिसते जाओ, डेप्रिशिएट करते जाओ। डेप्रिसिएशन 77 78 फर्स्ट ईयर 12 महीना यूज किया होगा तो 1,800 रुपया आएगा। 10% बहुत कम जा रहा है। क्या आ रहा है? 9,900 आ रहा है क्या 9,900? एट द एंड में। हाँ तो राइट, मेरे को करने तो दे। हाँ ना भाई, वही तो कर रहा हूँ। WDV ऑन, ये देखो जून 77 was the last date, right? So I started from 1st July. 77 78 1st July to June 12 महीना। तो WDV on 1778 is 16,200 less depre 78 79। एक मिनट, हाँ, दिस इज अगेन 1800। हाँ बोलो। इधर अभी कंटिन्यूस ऐसे 4 years और बाद में 6 months है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या 4.5? यस 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 यू कैन। यस यस यस, सीधा 4.5 साल का डेप्री एक साथ उड़ाओ और सीधा WDV लेके आओ, चलेगा। देन यू गेट थर्ड ईयर डेप्री 79 80 फॉर 12 months, that is again 1800। you get how much? 12,600। WDV on 1780। अभी 80 81 में भी नहीं बेचा है, तो और डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 80 81 का 12 महीना और 1,800। यू अराइव एट कितना? 108 10,000 900 रुपए 6 months का। हाँ 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 1781 पे पहुंचे। डिड वी सेल इट ऑन 1781? नो, वी सोल्ड इट ऑन 31st December 81। तो इस साल में भी कितना वापरा और 6 महीना वापरा, तो लेस डेप्रीसिएशन 81 82 का और 6 months, so that will be 900। we arrive at WDV on 31st December 81, that is 9,900। this is our day of sale। ये होना चाहिए वर्किंग प्रॉफिट। इतना बड़ा नहीं करना है, 4.5 साल का जैसे बोला अभी नमन ने, एक साथ उड़ा दो और WDV पे आ जाओ। इसमें ध्यान क्या रखना, ये 900 करंट ईयर का डेप्री है, इसको रिकॉर्ड करना बाकी है अभी भी। बाकी ऊपर वाले सब डेप्री रिकॉर्ड हो चुके हैं। ओके, 900 रुपया बाकी है रिकॉर्ड करना। नाउ लेट्स कंपेयर इट विथ सेल वैल्यू। कितने में सेल किया है? 16,000। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया अपना। तो प्रॉफिट ऑन सेल इज हाउ मच? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल? बोलो। 6,100। 6,100 is the profit on sale। Perfect। How many things you record at the time of sales? और 3 things। अभी ये साल के बीच में हो रहा है, तो इधर अलग अलग कर सकते हैं हम। 31st December 81 को पहले बाय डेप्री ऑन मशीन सोल्ड, यहाँ पे अलग एंट्रीज कर सकते हो, अलग डेट है, ठीक है। बाय डेप्री ऑन मशीन सोल्ड कितना था करंट ईयर का? 900 रुपया। गॉट इट? देन बाय बैंक अकाउंट बिकॉज यू हैव सोल्ड फॉर कैश, कितने में बेचा है? तो 16,000। एंड
प्रॉफिट हुआ है ना, तो टू प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ऑन मशीन का हुआ 6100 December. Is that clear? अब खत्म हो गया है, नो मोर परचेज नो मोर सेल. अब करना है डेफिट कैलकुलेट ऑन रिमेनिंग मशीन. कौन से डेट पे होगा ये? 30th June 82, 81 82 कर रहे हो, 30th June 82. ओके, 30th June 82 को बाय डेप्री अगेन ऑन अदर मशीन. कैन यू टेल मी अभी कितने मशीन है हमारे पास? 3, लेकिन 3 मशीन का 42,000. 42,000, दूसरा वाला है 40,000 और तीसरा वाला है 25,000. इज दैट क्लियर? ये 60 वाले में से 18 बेचा, ये 50 वाले में से 10 बेचा, और ये तो वैसे का वैसा है. तो लेट्स डू द लास्ट नोट ऑफ depreciation for the year 81-82. Machine 1 is now worth 42. So 42,000 by 42 you got 60 minus 18. So 42,000 का 10% for 12 months, क्योंकि ये तो शुरू से end तक था 4,200. Machine 2 है 40,000 का, उस पे 10% for 12 months, that is 4,000. and machine 3 है 25,000 का, 10% for 12 months, 2,500. 10,700 आया, डेप्रिट 10,700. बैलेंस भी बोल दो, अभी टोटल बोल दो, पहले टोटल 74,100. 74,100 and balance 46,500. 46,500. Is that clear? That's your solution. Okay? Clear with the problem? सर Yeah. सर जो 1800 है depreciation, that is a part of 6,000 of machine 1. 1800 जो depreciation है, that is a part of 6,000, yes, of machine 1. Okay, हाँ. Correct. 60,000 वाले में ही वो 18,000 पड़ा है. Yes sir. तो ये हर साल का 1800 हम लोग इसके अंदर ही साथ में करते हैं. और बैलेंस क्या रहा है लास्ट का? लास्ट का बैलेंस 46,500. 46,500. ओके. सर अभी इसको क्रॉस चेक करना है तो कैसे करेंगे, एक बार बताओ ना. क्रॉस चेकिंग तो सिंपल है. अभी देखो, ये 30, ये दोनों का तो मिल गया तुमको, 50 और 25 का. 50 वाला कभी परचेज किया था? 1 Jan को लिया था, दिख रहा है? तो 50 वाले को हमने कितने से डेप्रिशिएट किया है? सॉरी, 50 में से 10 वाला तो बेच दिया. तो 10 वाला जो बेच दिया उसको हटा, बचा 40. तो 40 वाले को फर्स्ट ईयर में आई थिंक 6 महीना वापरा था, तो 40 माइनस 2,000 बराबर, और बाकी 3 साल में तो 444 है, तो 12,000. तो ये 14,000 से गया, तो ये 26 हुआ. दूसरा 25 का था. 25 वाला फर्स्ट ईयर में तो यूज ही नहीं हुआ. ईयर 2, 3, 4 में 2,500 2,500 से डेप्रिशिएट हुआ है, तो 7,500 से गया. तो इसका WDV 17,500. आर यू गेटिंग दिस? और
तीसरा मशीन 60 मत लेना, अभी कितना लेना, 42 लेना। 42 भी मत लो, उसको और इजी करते हैं, डायरेक्टली टेक 36। 36,000 दिख रहा है तुमको ओपनिंग बैलेंस? वो कभी का 1778 का है ना ओपनिंग बैलेंस 36। उसमें से जो टुकड़ा बेचा ना उसका 1778 को बैलेंस देखो कितना है, 16,200 है, वर्किंग नोट से मिलेगा। ठीक है, तो ये 36 में से 16,200 हमने बेच दिया। 36,000 में से 16,200 हमने बेच दिया, बचा कितना? आई थिंक बचा 19,800 बचा। 19,800 रिमेनिंग एसेट का WDV मिल गया मेरे को, बराबर। एज ऑन 1778 वहां से कितना सा हुआ, 1 2 3 4 साल और इसको डेप्रिशिएट करने का। बट कौन सा वाला मशीन लूंगा मैं? खाली 42,000 वाला लूंगा, 18 वाला तो बिक चुका है। तो 42,000 वाले का 4 ईयर कितना होता है, 16,800 होता है, 4,200 पर ईयर। तो बचा 3,000, इन तीनों को ऐड करो, यू शुड गेट 46,500। चेक कर लो। तो वो 36,000 वाला क्या किया आपने WDV देख के, वो समझाओ। देखो 36,000 का WDV मतलब क्या, बुक वैल्यू था ऑन 1 जुलाई को, बराबर है। अब हाँ। ये 36,000 है ना, टोटल 60 वाला मशीन का WDV था। तो इसके अंदर वो 18,000 वाले का भी WDV पड़ा रहेगा ना, जो बिक गया। हाँ हाँ। तो उसका WDV चेक करने का 1778 को कितना था, आ गया ये रहा। जो 18,000 वाला था उसका 1778 को बुक वैल्यू कितना था, 16,200 था। ये तो बिक चुका है, तो 36 में से इसको निकाल दो 16,200 को। तो ये क्या मिला अपने को, 19,800 क्या है, 19,800 क्या है, 42,000 वाले का WDV मिल गया ना। समझा कि नहीं? हाँ। बस अभी 19,800 WDV है, तो इधर से आगे डेप्रिशिएट करो इसको। RBM नहीं कर रहे हैं, FIM कर रहे हैं ना, तो 42,000 का 10%, 4,200, 4,000। तुम ऐसा सोचो, देयर आर 2 मशीन, एक और एक 18 का। 18 को मारो गोली, तो 18 को मारा गोली, 18 का WDV कॉस्ट निकाल लो। नाउ दिस 19,800 इज द WDV ऑफ 42,000 का मशीन। तो 42,000 के मशीन को और डेप्रिशिएट करो 4 साल, क्योंकि ये WDV 19,800 कब का है, दिस इज ऑन 1778। 19,800 इज 1778, तो और 4 साल वापरा, तो 4,200 इंटू 4, 16,800, दैट इज द फर्दर डेप्रिसिएशन। ये रहा। तो अब ले दे के वो जो 60,000 का मशीन था वो अभी इतने का रह गया है, 3,000 का। 18,000 का बिक चुका, 42,000 का वैल्यू आज के डेट में 3,000 है। इज दैट क्लियर? इसमें हम लोग 60,000 से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने को मालूम नहीं कि वो 42 वाला कब खरीदा था। वापस पूरा वर्क बैक करके उल्टा जाना पड़ेगा अपने। उससे अच्छा बैलेंस लो, बैलेंस में से WDV हटा के डायरेक्टली आगे कंटिन्यू करो, शॉर्ट कट। समजलं की नाही? बोला। आता सर्टन टिपिकल सम्स, 2 more sums, small 39 12। छोटू है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा बॉम्ब है। लेट्स सी, एक साल का बनाने का। ओके, सम नंबर 13, सम नंबर 12, ऐसा 5 मार्क्स का पूछेगा तो दिमाग लगाने वाला सम है। सीए में देखो रगड़म पट्टी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट एनी टाइम।
सम नंबर 13 क्या पूछा है? श्री सुनील का इंफॉर्मेशन है मशीनरी अकाउंट फॉर जस्ट 1 ईयर 1998। एक ही साल का छोटा सा मशीन अकाउंट बनाने का है। जस्ट 1 ईयर मशीनरी अकाउंट, ठीक है, दिमाग वाला सम। अभी का सम अगर 16,000 वाला कंसेप्ट समझा है तो पता चलेगा किसको समझा है किसको नहीं समझा। यू वांट टू ट्राई ऑन योर ओन और शुड वी डू इट टुगेदर? मैं तो सॉल्व करेगा, ट्राई कर रहे हो? चलो गुड, ट्राई इट, दिमाग लगाओ। आई हेल्प यू आउट। एक ही साल है, देखते जाओ, 1 जैन से चालू कर। FIA मेथड है 10%, आई थिंक, या 10%। रीड ऑल द इंफॉर्मेशन। एक साल में क्या क्या आएगा, किधर से आएगा, क्या अमाउंट आएगा, दिमाग लगाओ। सर कौन सा सम बोलो नहीं क्या? 13 13 और ईयर एंडिंग क्या है? दिसंबर दिया है, देखो लास्ट लाइन। ओपनिंग बैलेंस दिया फर्स्ट जैन, लास्ट लाइन पे ईयर एंड 31 दिसंबर। अभी भी ओपनिंग बैलेंस है, दैट इज द फर्स्ट डेट। इंस्टॉलेशन चार्जेस कब हुआ है उसके साथ ही कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है तो सेम डेट, या कुछ नहीं दिया है तो सेम डेट।
ये मिला होगा सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6500 का प्रॉफिट। अब रिमेनिंग मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट पता चला? 17,000 ना? 17 ओरिजिनल कॉस्ट। रिमेनिंग मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 35,000। हाँ 35 दिया। देखो हिंट है ना, क्या दिया? 52 minus 17 मतलब ऐसे। हाँ 52 minus 17, ये समझ आया सबको? ये देखो 17,000 was the WDV on 1198. What is 1198? 31st December 97. It is one and the same. तो अपने को क्वेश्चन में दिया है कि as on 31st December 97 हमने एक मशीन खरीदा था 35,000 का, एंड वी ऑल्सो नो कि ये जो सेल हुआ है इसका WDV ऑन 31/12/97 इज 17,000। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है? 52,000 विच इज द ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस में दो मशीन है, एक 35 का है जो 31/12/17 को लिया, और ये 17 WDV है, नॉट द कॉस्ट। ये WDV है ऑन 31/12/17। इसका कॉस्ट कुछ और था, 20,000 का कॉस्ट था, लेकिन ये तो बिक चुका है। अभी बचा कितने का? मतलब 35,000 का। इज दैट क्लियर? जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, जैसे हमने बैलेंस ढूंढा वैसे ही है। ये क्लिक हुआ? डेप्रिसिएशन 4750 आ रहा है। कर रहा हूँ कैलकुलेट, एक ही मिनट। 35,000 वाले पे फुल ईयर, क्योंकि शुरू से एंड तक है, तो 3500 और दूसरा कितना है? 25,000 पे 10% फॉर कभी खरीदा है वो? 6 months। हाँ 6 months। तो कितना आता है? 1250 4750 ऑफ इट। 4750 is your depreciation. Did you understand that 3517 वाला part all of you? 52,000 was the balance. Balance में एक का WDV था और एक का अगले पिछले दिन ही खरीदा हुआ था, तो डेप्रिसिएशन किया ही नहीं है। 35 वाले पे थोड़ा भी डेप्री चार्ज नहीं किया। नवा अकोर मशीनरी का अगले दिन खरीदा हुआ 35 का, जो बैलेंस बन के आ गया 52 में। तो 35 was the original cost. तो बेसिकली देयर वर 3 मशीन, 35, 25 एंड 20 ऐसा था। 20 वाला बिक चुका है, अभी 35 और 25 वाला बचा है। उसका डेप्री चार्ज कर देने का 4750 एंड देन बैलेंस। एनी डाउट इन दिस? पूछो। बैलेंस कितना आ रहा है बोलो? 55250। टोटल बोल दो, टोटल कितना है? 83,500 टोटल है, और बैलेंस कितना बोला? 65,250। 65
5 5 5 5 5 0 552 5 0 55250 55250 चेक द आंसर। आया, खुद से आया सबको? ये बोलो, एनी डाउट? ब्रेकअप समझा ऊपर वाले का, मशीन का ब्रेकअप। नाउ सम नंबर 12 सर वो वाला खुद से होमवर्क करना में है। कर देंगे ना? होमवर्क करोगे? 12 होमवर्क कर देंगे। एक मिनट, बहुत छोटा है। छोटा सा समय, 1 साल का बनाने का, खाली सुन लो, होमवर्क करो, चलो वांदा नहीं। सेकेंड हैंड मशीनरी वाज इंपोर्टेड फॉर 5000, फिटिंग, रिपेयरिंग, इंपोर्ट, क्लियरिंग चार्जेस वेयर, पहले तो फिटिंग चार्जेस एंड रिपेयरिंग वेयर 2000, इंपोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस वेयर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो कौन किस पे लेगा इंपोर्ट ड्यूटी 10%? 7000। नहीं नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट 5000, 5000 इंपोर्ट ड्यूटी उस पे जाएगा, रिपेयरिंग चार्जेस 2000 ऐड हो जाएगा, बराबर। बट ओरिजिनल कॉस्ट है ना मशीन, अभी तुम कोई चीज खरीदते हो तो जो भी टैक्स रहेगा वो तो ओरिजिनल वैल्यू पे, कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर के वैल्यू पे टैक्स रहेगा ना। फिर तुम इंस्टॉल करवाओगे तो वो तो अलग से खर्चा ऐड कर दोगे तुम कंप्यूटर। आर यू रीडिंग दिस? तो यहाँ पर तुम्हारा 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब 5000 का 10% होगा। इज दैट क्लियर? तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना मिलेगा? 5 + 2 7 + 5 7500 मिलेगा। 7500। Is that clear? And machine was sold for 2000. 5% commission had to be paid to broker on sale. वो 5% किस पे लोगे कमीशन? 5% कमीशन टू ब्रोकर। 2000 रेसिडुअल वैल्यू पे नहीं भाई, सेल वैल्यू पे। ब्रोकर, हाँ सेल वैल्यू। देखो कैसे हम लोग शेयर्स पे करते हैं, परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू। तो इधर सेल वैल्यू 2000 का 5% वो काट लेगा ब्रोकर और तुमको हाथ में देगा 1900। योर सेल वैल्यू इज 1900 नाउ। इज दैट क्लियर? एक ही साल का बनाया, 10% FIM है। समझा सबको क्या था उधर? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? बताओ। यस। ओके, सो दैट इज फॉर होमवर्क। अभी खाली मैं इंट्रो कर रहा हूँ थोड़ा RBM का, कल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। प्लीज फाइनल अकाउंट्स भी करना है, बाकी टेस्ट मत पूछो। टेस्ट भी है ना आज, तो डबल लेक्चर जितना हो गया हमारा। चलो ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं RBM। टेस्ट के लिए बराबर प्रिपेयर करना, 6:30 से 7:45। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ डाउट? सर आपने इम्पोर्टेंट सम्स नहीं डाले? डाला, कब का डाला? 2 दिन हो गया। मॉड्यूल पूरा करना है और शीट का इंपॉर्टेंट सम डाला हुआ है। मॉड्यूल का एक सम मत छोड़ना, कल्याण होगा नहीं तो।